Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन, वेल डन, कैसी हैं आप? गुड है ना? मैं ठीक हूँ बिल्कुल. मैं मिनी हसन 101 कर लूं? हाँ जरूर, अगर आपकी इजाजत हो तो. प्लीज. I want to thank all the lovely people जिन्होंने कल हमारे हॉट बाइट्स के बाद वो हॉट बाइट्स के बाद कमेंट भेजा हाँ. और रिव्यू किया मेरे इंट्रो को. ओह. उन्होंने कहा कि यार आप नेचुरल बात करें. हाँ. क्योंकि अब आप जब ऐसे बात करें तो मैं अच्छा नहीं लग रहा. नहीं लग रहा. आप नॉर्मल रहें. हाँ. और आप कोई इस बात की परेशानी ना लें. हाँ, हाँ. कि आवाज ऊंची है या नीची है, क्या है. खुल के खेलें. खुल के उन्होंने कहा दिस इज हाउ वी लव यू. ओह. ये जो बात की उन्होंने, ये जो प्यार है, ये जो प्यार हाँ. उमड़ के आया, तो मैंने बोला आपने कहा मैं कौन होता हूँ फिर. मैंने कहा यार हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. बिल्कुल. मेजॉरिटी जो बात बोलेगी हाँ जी. वो हम करेंगे. जी. तो अब ये क्लियर विक्ट्री मेजॉरिटी की होगी. इतने माशाल्लाह कमेंट्स आए. थैंक यू आई जेन्युइनली आई लव यू गाइस सो मच. डीएम भी आया. उन्होंने कहा यार आप क्या ये हल्की आवाज लेके बैठ गए हैं, आप चिल करें. हाँ. मैंने कहा यार ये चाहने वाले तो ऐसे ही होते हैं. फिर वो तो आपको इसी तरह चाहने वाले तो जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं. बदलने को तो नहीं कहेंगे. बदलने को तो कोई नहीं कहता. असल जो प्यार होता है उसमें यू डोंट वांट द. तो अब ये जो कह रहे हैं कि बदलो आवाज नीची करो, ये प्यार नहीं करते. आपको अब मैं आपकी इंटेंशन को मैं डाउट करने लगा. सही बात. क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से हम लोग कर रहे हैं जी. तो उनको पता ही है कि ऊंची आवाज है भाई. वो नई बात तो नहीं है. ये एक बात करनी थी. ठीक है. दूसरी बात ये मैंने करनी थी. मुझे पता है पुट ऑन वेट but it's by choice. I just wanted to clarify that it's very kind of people who are reaching out. किसी ने बदतमीजी नहीं की. नहीं, मैं देखती हूँ कि हसन you put on weight heart या किसी इमोजी. तो बड़े प्यार से वो कहते हैं I thank you very much. I really appreciate and acknowledge the feedback, but this is by choice. I'm not getting time these days to work out or to run or to jog. No, I wouldn't say it's by choice, but it's happened and you'll get to it. No, by choice means that I know I put on weight and I have put on weight. No, but it's not like you by choice because I could have controlled it via diet or whatever else. I feel by choice means that I've been told by the doctor to put on weight, so I've. No, by choice means by my own choice. हाँ बस ठीक है. By my own choice, मैंने weight put on किया है, and I'm aware of the fact that I put on weight. And it's okay. And it's okay. And the second part is that even if somebody's put on weight, what's the big deal? It's fine. It's fine. You know, आजकल की दुनिया में your friends tell you, then your cousins tell you, everybody tells you, then your family tells you, और फिर आप आके बताते हैं. तो by the time आप कोई feedback पहुंचा रहे होते हैं, यकीन करें वो already पहुंच चुका होता है, प्रोसेस भी हो चुका होता है और एक्टिवेट भी हो चुका होता है. I would love to know कि जब आपको ये कहता है कि you know put on weight, what does that mean? Does that mean that you put on weight and we're really worried that you're putting on weight and your health is going to suffer? Does it mean you put on weight and you're really looking bad? Or does it mean you put on weight and you're looking cute? What does it mean? I mean, it's such a personal comment कि ये कहना कि you put on weight, I get on the scale. I know I've put on. Even if I put on a pound, I know I've put on. But by you telling me, what are you trying to say? एक मुझे जो comment आया उसकी basis पे I can tell you. उन्होंने कहा कि यार please take care of your health. So that I can understand that maybe you know people are जो आपके चाहने वाले होते हैं, प्यार करते हैं, वो concerned होते हैं यार कि तुम्हारी health के लिए सही नहीं है, थोड़ा सा fitness पे focus करो. You know, in a motivational way, a lot of people say that. That's fine. Then to some people, obviously, when they look at you, they think that you do not look appealing enough or attractive enough because you've put on weight. वो उनका एक perspective है, वो भी अपनी जगह ठीक है. हम हमेशा में और आप बात करते हैं कि दिस इज अ विजुअल मीडियम. और जब हम एक्टर्स की बात करते हैं या एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, यू नो एट सर्टेन टाइम्स हम एजिस्ट नहीं हो रहे होते, बट इट्स जस्ट दैट एक एक्टर का एक सर्टेन कैरेक्टर में फिट इन करना अपीयरेंस मैटर करता है उस हवाले से भी. सिमिलरली मैं और आप भी अगर स्क्रीन पे हैं तो इस हद तक तो अपीयरेंस हमारा मैटर करता है ना कि वी शुड बी प्रेजेंटेबल इन वॉट एवर वे वी आर. आई एम नॉट सेइंग कि यू नो व्हेन यू आर ओवरवेट यू आर नॉट प्रेजेंटेबल, or when you put on weight you're not presentable, but it's how you also like you know carry yourself and the kind of clothes that you wear. पूरा एक आपका personality shape up होती है ना. इससे weight का ताल्लुक नहीं है, but it's how you appear and how you like embrace yourself on screen. I feel it's something very personal. And कभी ऐसा होता है कि किसी की कोई problem होती है कि वो weight gain हो जाता है, या you know कोई somebody's going through a bad time and you put on weight. A lot of it is emotional eating a lot of times. So I just feel that in our society we have problems with personal spaces. हमें नहीं पता कि
क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए. And of course ये बात भी है कि when you're a public figure and you're in the public eye, so people, you know, they think that they have that right, which is fine. And like you said, all the comments were really loving and caring and कोई abusive नहीं थे, so that's fine. But I just feel कि थोड़ा सा personal spaces का, because what's the difference between this and somebody at a wedding जिस तरह वो कोई आंटी है तो बड़ी healthy हो गई हो, मतलब what does that mean? That if you put on weight, I mean that's a really cheap way of saying, hey, you know, you put on weight. But you'd agree, right, that I think in 99.9% of the cases, people are aware that, okay, I've put on weight. No, everybody knows. Everybody knows, Yeah, right? yeah. It's not like that they don't know. They don't know. So Everybody knows. मेरा उस perspective से होता है कि अगर किसी ने weight put on कर लिया है, तो obviously they look at themselves in the mirror. They know. Yeah. So, Achha, and for people who have always been overweight like myself, I dread that. I mean that comment, that first comment, that somebody they see you after a long time and they said, "Oh God, you've put on weight." You dread that comment because you know you're reduced to the few pounds that you've put on. आपने अगर कुछ अचीव किया है या आपने कुछ लूज किया है या आपके कोई इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं या आप खुश हैं या डिप्रेस्ड हैं या आपकी यार सिंपली टाइम नहीं है यार, नहीं कुछ भी आपका है, all of that is reduced to put on a few pounds. Those few pounds whitewash everything, and that's terrible. Actually, you know. But I'm not. What do you have to say about people who genuinely try to motivate you? एक होता है ना कभी-कभी laziness की वजह से. You have to give them that right to motivate you. I'm not talking about the audience. I'm talking about people. हम generally एक conversation. I'm talking about people in your life. हाँ. People in your life. I have not given that right to people in my life for everybody to come and say that, you know, oh, you should go to the gym or you should do what. No. There are people, if my children come and say this to me, I will listen to them. I will take it seriously. You know, we have that relationship. And it's two-way. But other than that, I don't want, you know, my whole family telling me कि you know तुम ये किया करो, तुम intermittent कर लो, keto कर लो यार. Like my wife has that right to. Of course. When she tells me of course. that, and then I'm like, okay. She has the most right. Yeah. When she tells me, then obviously, then I need to consider it serious. And I keep asking her बीच में. When I know that I put on weight, I ask her. I'm like, मैंने ज़्यादा put on कर दिया है, and she says कि नहीं ठीक है, अभी उतना नहीं हुआ. अभी जब उतना है ना, she knows कि अब उतना हो गया है, and then she'll be very honest and she'll tell me कि अब इतना हो गया है, अब you're not looking nice. Also because obviously again visual medium है, कपड़े एक तरह के आप पहनते हैं, आपका style. It's not about visual medium. It's about yourself as well. कपड़े फंसेंगे तो बुरा लगेगा ना. बुरा लगेगा ना, वही बात है. आपका वो फिर appearance. देखिए हर बंदे की अपनी एक होती है, अपना एक normal होता है. There is a norm in which you set yourself. अगर आपका अपना आपका वेट गिर भी जाएगा बहुत ज्यादा, फिक्रमंद होंगे कि यार गिर क्यों रहा है, गेन हो जाएगा फिर भी आप फिक्रमंद होंगे कि क्यों गेन हो रहा है. सो यू हैव टू अबाइड बाय योर नॉर्म. और सबसे ज्यादा आई थिंक बेहतर अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये कॉन्वर्सेशन कर लें और आप लोग आपस में ये एक रख लें गेज, वो सबसे बेहतर है. बिकॉज आपका पार्टनर हमेशा आपको ऑनेस्ट राय देगा या देगी. तो आई थिंक ये कर लें, पार्टनर की बात सुने. क्योंकि मैं अपने बीवी की सुनता हूँ, मुझे अगर वो कह देती ठीक है तो मैं फिर इतना बॉदर नहीं होता. बिल्कुल सही. सबसे ज्यादा तो आपको उसी ने देखना है, तो ठीक है ना. और उसी के लिए आपने फिट भी होना है. नहीं हाँ, और भी फिट. Okay, you really want to go there? Okay. नहीं हाँ, but हाँ, primarily तो उसके लिए. Primarily उसके लिए. Absolutely. तो ये एक चीज ये, दूसरी चीज ये, बिलीव और भी कुछ है. जब हम भंड मारते हैं हमें पता चल जाता है. वो अभी क्या भंड गलती से मैंने हॉट बाइट्स में बोल दिया हाउसफुल 3. एक्चुअली वो गोलमाल अगेन थी फिल्म अजय देवगन की और परिणीति चोपड़ा की. तो टर 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 फिर डीएम में टर 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 टर. ठीक है, पता चल गया है, वी अपोलोजाइज. और मैं आपको बता दूं, कल मैंने लफंगे की टीम के साथ वीडियो शूट किया. आपने होपफुली आ चुकी होगी क्योंकि अभी तक हमने रिव्यू नहीं की. बट आई होप इट्स टर्न्ड आउट वेल. थोड़ा सा हमने उसमें भी फन का एलिमेंट डाला है. और उसमें भी मैंने हाउसफुली बोला है, समी से और नाजिश से और मानी से. लेकिन लफंगे का जो टाइटल ट्रैक है वो हाउसफुल के गाने की कॉपी है. टाइटल ट्रैक हाउसफुल है, बट जो मैं रिफर कर रहा था, पापा जी बैंड बजाए, बट मैं परिणीति चोपड़ा और अजय देवगन की जो वो गोलमाल थी, मैंने कोई भी नहीं इनमें से देखी, तो आई डोंट नो. तो वो मेरे से गलती हो गई. तो मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा है, उसमें भी मैंने गलती से हाउसफुली बोला है. तो प्लीज माफ कर दिएगा. अब तक उस पे कमेंट आ चुके होंगे बाय द वे कि आपने गलत बोला नाम. बट थैंक यू. पता लग जाता है, एक बारी में पता चल जाता है. और वो जो कमेंट कर रहे थे उनकी भी गलती नहीं है, वो देख तो नहीं रहे होते ना कि बाकी लोगों ने ये कमेंट करके बता दिया है. सो 150-200 कमेंट एक ही चीज पे आ जाता है, बट दैट्स फाइन. तो लफंगे की टीम के साथ वीडियो की है कल.
होपफुली आपने देख ली होगी और उसको एंजॉय किया होगा। मैंने अभी तक रिव्यू नहीं की, अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो फिर हम उसको मंडे को एड्रेस करेंगे, और अगर अच्छा फीडबैक आ रहा है तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा थैंक यू। हाँ होपफुली साउंड के इश्यूज नहीं होंगे इस बार। जी जी आमना, जी। चूंकि हम अभी आज इकट्ठा हुए हैं ये आपका तकिया कलाम बन गया है ड्रामे रिव्यू करने हाँ, के लिए, तो आपने आप नोटिस नहीं किया मेरे बाल कट के? मैं देख ही रहा था कि ये हाँ। क्या आपके बालों में कुछ डिफरेंट लग रहा है ना छेड़ना है इस मुलंगानो, मेरे बाल तो मुझे। यहाँ पे कटाए ने मैं जनाब, आप कटाने कुछ जाते हैं और कट कुछ जाता है। ये क्या बात ये वो है। नहीं नहीं, आपसे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर इसको सकता, कहते इतने हैं एक्सपीरियंस जी जी जी, इसको कहते हैं फैशनिस्टा। बैड हेयर डे। इसको कहते हैं कि जब आप अपने हेयर ड्रेसर के पास जाएं और उससे कहें कि ज़रा सा ट्रिम कर दे और लेयर डाल दे, और वो आपके 3-4 इंच उतार दे बालों के, और ऐसा कर दे कि आप अगर बाल क्लिप उतारे हैं तो भी समझ नहीं आ रही। अल्लाह का शुक्र है मेरे बाल बढ़ते बहुत जल्दी हैं, so they will be back in form, and but it'll take 2 months, and I really So you're not happy with the no, hair? it's a disaster. It's a complete, my hair is ruined. I would at this point like to put a picture of my hair in DC, and I will please Shah Rukh ki chala dena tasveer. This is how my hair looked like In DC? in DC a month ago. Okay. And please. No, but who is responsible? You, clearly. No, my hairdresser, but it's my fault. I told him layer dal do, and he was supposed to take off half an inch. He took off too much. He took off 2-3 inches. वो जिस बात में आ जाते हैं hairdressers के अच्छा कि बाल काटने हैं, बाल काटने हैं तो बस काट We दो। have to show something for it ना, कि अपने बाल काटे हैं जी ऐसा। देख लें, बस कट के हैं बाल फिर। बुचर हो गए हैं बाल, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं बुचर हो गए हैं बिल्कुल। मुझे अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। ठीक है। प्रिडिक्शन है कि ओवर द वीकेंड बारिशें आ रही हैं, बारिशें होने लगी हैं पूरे मुल्क में, स्पेशली कराची का भी हमने, जी। क्योंकि बाकी मुल्क में तो होती रहती हैं, कराची में साल में एक अल्लाह आध बार ही रहम होती करे है। वैसे, हाँ। तो प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, अगर शुरू हो गई हैं बारिशें और अगर नहीं हुई तो शायद होंगी। ऑब्वियसली इस बार प्रिडिक्शन है कि शायद मुझे तो कराची नहीं में नजर आ रहा कि कोई रेन वो गटर साफ हो रहे हैं या कुछ, नथिंग। ये आपकी पूरी रोडें नहीं बनी है बाय द वे। जब मैं जहाँ से आता हूँ गिजरी से, जी। तो सऊदी एम्बेसी वाली पूरी रोड और वो जो नीचे जाती है जहाँ पे ये तो बहुत बारिश ज्यादा होंगी तो पता चलेगा। बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है, तो आई होप कि ये जो काम हुआ है ये अच्छे से हुआ हुआ। आप भी अपने अपने शहरों में 2 साल पहले की वो फ्लड से ना, जब लोगों की तबाहियां हुई थी, बिल्कुल। बिल्कुल 2020 and 2021 नहीं, लास्ट ईयर नहीं था। 20 लास्ट ईयर नहीं। ओह हाँ, that was 2020 yeah. 2020 मेरे घर में डाइनिंग रूम से पानी आना शुरू हो गया था शाम को, और फिर शुक्र है बारिश रुक गई, बिकॉज वहां से आता तो पूरे घर में। लेकिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ था बहुत यार, नुकसान जिनके हुआ था। बेसमेंट थे उनके पूरे बेसमेंट भर गए, लोगों के बिजनेसेस तबाह हो गए। और इस बार वार्निंग उन्होंने ऑलरेडी जारी की यार है वार्निंग क्यों दे रहे हैं? पूरी दुनिया में बारिश होती है, आप संभालें, सिस्टम संभालें। हाँ, उन्होंने अभी से वो स्टाफ की नहीं, छुट्टियां हमें वार्निंग नहीं चाहिए। वी वांट द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द सिस्टम। बहरहाल मैं आप इंफॉर्मेशन रिले कर रहा हूँ कि हम ही सब करें। अर्बन फ्लडिंग की उन्होंने टैक्सेस भी हम दें। मतलब 2 साल पहले भी जो हशर हुआ था, लोग टैक्सेस दे रहे हैं यार, लोग अपना खून पसीना दे रहे हैं इस मुल्क को। आप लोग सड़कें नहीं बना सकते? अब उनके घरों में तो पानी नहीं आता। बिजली के जो मसाइल हैं, बिजली चली जाएगी, पूरे अभी भी जा रही है, जितनी जा रही है पूरे मुल्क में, जिस तरह की लोड शेडिंग हो रही है, पावर आउटेजेस हो रहे हैं, तो ये हमारी हुक्मरान को चाहिए, हर जो भी गवर्नमेंट आती है वो आके इन चीजों के, इन बुनियादी चीजों के ऊपर बात होती नहीं है, और वो साइकिल अपना अपना करके निकल जाते हैं, और जो अवाम है वो उधर की उधर। आज किसी ने शेयर किया, वो डीवा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने किसी वो शेयर की हुई थी अखबार की क्लिपिंग, in 1986 लोड शेडिंग विल एंड बाय 1986। व्हाट अ जोक। तो देखें ये 1986 ज़ियाउल हक का दौर था तब, कि यार 80s में, कि तब 1986 में लोड शेडिंग नहीं आती यार इन लोगों को, सीरियसली। 36 साल। No, we don't want warnings about rain. We want the bijli to stay, and we don't want flooding. Simple. Which obviously won't happen. The bijli will Kuala also Lumpur be. में 300 कितने 365 डेज में से 360 डेज बारिश होती है, पानी एक छप्पड़ नहीं खड़ा होता कहीं। नहीं होता है, खत्म हो जाता है। अब दुबई में भी होता है ना। नहीं होता। अब दुबई में भी बारिश होती है, आपने बड़ी बार देखा, पानी खड़ा होता है, फिर निकल जाता है। बारिश होती है तो पानी तो खड़ा होगा। लंदन में भी होता है, मैनचेस्टर में भी होता है, बर्मिंघम में भी होता है, बट निकल जाता है। निकासी का निजाम इतना अच्छा होता है कि वो खड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोगों की अब जिंदगियां मुअत्तल हो गई हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और स्पेशली बिजली की तारों से दूर रहें, बचें, अपने बच्चों को बचाएं। बिल्कुल। ये हर बार बारिशों में हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं, वीडियोस भी फिर आती हैं, सर्कुलेट होती हैं, कि जो बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा जो जानें ज़ाया होती हैं।
तो ये प्लीज अपने बच्चों के लिए बहुत एहतियात करें, अपने खुद की जी। एहतियात करें कि बिजली की तारों से आपको वो दूर याद है जो विजुअल्स आए थे, जो अंडरपास भर गया था, हम्म, वहाँ लोग डाइवें मार के स्विमिंग कर या, रहे थे? या। ये नहीं करें यार, इट्स डेंजरस। ऐसी चीजें मत करें। और ये कोई मत करें साफ पानी अपनी, नहीं है रोडों के ऊपर जो खड़ा हो जाता है जिसमें स्विमिंग शुरू कर दें। गंदा पानी है, गटर का पानी मिक्स हो जाता है, बीमारियां फैलती हैं। प्लस ये हाँ है कि आपकी बिजली की तारें उसमें हाँ, गिर रही होती हैं। जस्ट जस्ट टेक केयर ऑफ तो योरसेल्फ। ख्याल रखें। बिल्कुल बड़ा एक भरपूर इंट्रो सोशल मैसेजेस से जी। भरपूर। ड्रामे कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास जी 7-8 ड्रामे हैं, जी बताएं। जिसमें से हमारे पास 2 किस्तें हैं चुराहा की। वेरी गुड, हब से हमारे पास वेरी गुड। दुश्मन की किस, जी बादशाह बेगम की किस, जी। कैसी तेरी खुदगर्जी की एक किस, ओ धमाकेदार, और वहम की एक किस। जी। जी। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक 11 मिनट के एपिसोड देख लें टीम मुहाफिज की। आपने जी, देखी? वो जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है, देखी कि नहीं देखी। ठीक, यानी कि जी, नहीं देखी आपने? सस्पेंस में रखना चाहती हूँ अच्छा आपको। सस्पेंस। टीम मुहाफिज एक एनिमेटेड सीरीज है जो कि जियो के ऊपर चलना शुरू हुई है, जो कि ISPR जियो की कोलैबोरेशन से बनी है। बच्चों की एक सीरीज है। हमें लगा कि उसको 11 मिनट की एपिसोड थी तो लगा कि देख के उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने मिस मार्वल को डिस्कस किया तो मुझे जी। लगा कि उसकी रेलेवेंस थी। जी। तो आमना सस्पेंस में रखना चाहती है कि उन्होंने वो देखा या नहीं देखा उस किस को। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। कहीं जाइएगा मत। जी आमना, जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? टीम मुहाफिज से जी बताएं। जी क्या? टीम मुहाफिज देखा आपने? 11 मिनट की एपिसोड थी आमना, मैंने जी, आपसे रिक्वेस्ट की थी जी। अगर आप देख लेती तो। जी बहरहाल मुझे इसकी रेलेवेंस यूं भी समझ में आई जी कि क्योंकि हम उस दिन मिस मार्वल को डिस्कस हमने किया, बात की, तो जो हमारे लोकल सुपर हीरोज हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों के लिए कंटेंट लोकली पाकिस्तान में क्या बन रहा है, एंड मेरे लिए वो ज़्यादा भी एक कंसर्न की बात है, बिकॉज माई 2 daughters, they're always watching TV and they're always on YouTube. And frankly speaking, the kind of content that they are watching, I'm not too happy with it. right. But I also can't be a Why? strict What fuck. are they watching? I mean, your YouTube vloggers and all these things. Why and are they like, watching that? क्या देखें? Why are they watching आप cartoons? कार्टून्स भी देख रही हैं, बट ये भी देख रही हैं, ये जो व्लॉगर्स हैं और यूट्यूब वीडियोस हैं, Unboxing videos. इस तरह की कंटेंट। तो बात ये है कि पाकिस्तान लोकल कंटेंट, लोकल उर्दू कंटेंट अगर बच्चों के लिए कोई बन रहा हो तो बंदा जी। बोले अपने बच्चों को कि बेटा आप ये देखो। जी। um, आपने बोला अपने बच्चों को? उस एतबार से मैंने वो लगा दिया एपिसोड ठीक है। बच्चों के साथ बैठ के, ठीक है। एंड आई थॉट कि यार देख, मैं भी देखता हूँ, बच्चे भी देखने गए। जी। So the good thing was that my children enjoyed it. Okay, that's And great. because it was only an 11-minute episode, I also enjoyed it. I ठीक watched है। with them. It's a very simple premise, जिसमें है कि यार there's a group of teenagers who are called Team Muhafiz, Okay. जो कि जुल्म के खिलाफ, सोसाइटी के जो evils हैं उनके खिलाफ वो चार्ज लेते हैं और वो लोगों की हेल्प करते हैं। बिजली पानी भी दिलाते हैं? बिजली पानी तक अभी बात नहीं पहुंची। अच्छा। अभी इनिशियल पहली जो एपिसोड थी, Security तक है। पहली जो एपिसोड थी उसका नाम था पर्ची। उसमें अच्छा। बेसिकली ये होता है कि भत्ता सिस्टम। वो भत्ता लेने के लिए आते हैं और वो उस पर्ची देते हैं कि 1 लाख या लाश बनी हुई होती है, तो या लाख रुपया दो तो या हम। But if it's for children, then why would children be interested in that? उनका तो जहन वहां तक नहीं पहुंचेगा पर्ची सिस्टम तक। उनका इस तरह से पहुंच रहा है ना कि जब वो वहां पे पहुंचे एक्सप्लिसिटली, मतलब इतना नहीं उनको समझ आएगी पर्ची की, बट उनको ये पता चल गया कि 2 लोग हैं या गुंडे हैं। But is it for children? It's for teenagers. It's मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब आप 3-4 साल के बच्चों को दिखा लें, बट आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 8 से लेके 16 साल की उम्र के बच्चे, 7 से 16 साल की उम्र के बच्चे, उनके लिए ये है। उसमें अब वो बच्चों को ये समझ आ जाती है यार ये गुंडे हैं, ये उनको तंग कर रहे हैं जो शॉपकीपर्स हैं, और फिर वो जो 4 हमारे मुहाफिज हैं वो आते हैं। अब इसमें जो मुहाफिज का जो किरदार प्ले कर, एक्चुअली एक तो हैं इनमें एहसन खान जी, जो कि इन सबके मेंटोर मैंने पढ़ा था थोड़ा सा इनके बारे में। जी जी, एहसन खान मेंटोर हैं। एहसन खान मेंटोर नहीं है, जो भी कैरेक्टर मेंटोर है उसका वॉइस ओवर एहसन खान का है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें है एक जैन, हु इज अ क्रिश्चियन बलोच इंडिविजुअल। उसके जो माँ बाप थे वो एक चर्च अटैक में मारे गए थे। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, बट जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसने फिर
डिसाइड किया कि और वो ये सैयद शफात अली इज प्लेइंग सैयद शफात अली हैज डन द वॉइस ओवर फॉर दैट। परी परी नाज हैं played by Sajal जी, Ali. then there is Parinaaz जी. played by Sajal Ali जी. और जो Parinaaz का किरदार है वो athlete ओलंपियन type. बाप जो हाँ, हैं वो उनके वालिद साहब जो हैं वो ओलंपियन है हॉकी उठा के, तो वो भी फिर ये उनके ख्वाब है कि वो भी कुछ करें। देन देयर इज रजा जिसका वॉइस ओवर किया है वहाज ने। रजा जो है वो मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है। अच्छा। और वो एक चाइनीज उसके जो मार्शल आर्टिस्ट थे बड़े रिनाउंड, उनका वो स्टूडेंट है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और फिर एक जो कैरेक्टर है वो है महानूर, ठीक है, वो उसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, दनानीर जिसका वॉइस ओवर दनानीर ने किया है। और वो जो बच्ची है वो जीबी की फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट है। सो गुड थिंग इज के रिप्रेजेंटेशन है पूरे पाकिस्तान से। क्रिश्चियन आपने एक कैरेक्टर भी दिखाया है और एनिमेशन जो है वो भी अच्छी है। 11 मिनट की एक एपिसोड है, ठीक है। कुछ लोग के दिमाग में शायद देखने के बाद सवाल आए कि इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी क्या है, कि ये क्यों इस तरह डंडे उठा के या हॉकी उठा के या बैट उठा के मार रहे हैं। तो द सीरीज इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉमिक्स। अच्छा। और वो कॉमिक्स में पूरी ये चीज एक्सप्लेन हो चुकी है। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसका जो सीजन 2 है विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ प्रीक्वल। सो जितने ये कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, हमारे जो हीरोज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, क्या इनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए like Dance of Dragons will be a prequel to Game of Thrones. exactly like that. exactly like that. exactly ditto like that. बिल्कुल मतलब word for word like that. A to Z. बिल्कुल ऐसे. Right to the T. बिल्कुल hit the nail on the head. तो बिल्कुल वैसे ही इसका प्रीक्वल आएगा जिसमें आप देख सकेंगे कि इनकी स्टोरी। तो अभी इनिशियल स्टेजेस में उन्होंने एक हुक क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट कहानी स्टार्ट की है कि यार ये 4 बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं खैर आप टीनेजर्स हैं, बच्चे ही हैं। हाँ। ये 4 टीनेजर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और साथ में एक हवलदार साहब हैं जो उनको मेंटोर कर रहे हैं। ठीक है। सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एनिमेशन इज गुड, द वॉइस ओवर्स। एक बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, आई थिंक इन सब की जो आवाजें हैं, सज्जल, वहाज, दनानीर, इनको थोड़ा सा इन पे काम हुआ है कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फौरन पहचान जाएं कि ये सज्जल की आवाज है, अच्छा, या ये वहाज की आवाज है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने टीनेजर्स को आवाज देनी थी। तो वो जो भी इफेक्ट उस पे डाला ना वो बड़ा अच्छा डाला उन्होंने। अच्छा। ऐसा नहीं लगता कि असल में वहाज की आवाज है। तो यू नो यू टेक अ व्हाइल टू रियलाइज। कितने एपिसोड्स हैं इसके? अभी तक तो एक आया है। अच्छा, वी डोंट नो। मुझे नहीं पता कि कितने, एक मैंने देखा है। अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर उसको देखें। आई एम श्योर कि जैसे मैंने और मेरे बच्चों ने एंजॉय किया, आप लोग भी एंजॉय करेंगे। एज आई सेड, ISPR जियो की जॉइंट एक कोलैबोरेशन है जी। बड़ी अच्छी बात है। जियो ने से पहले डोंकी किंग को भी बड़ा सपोर्ट किया था, और ISPR की जानिब से आई थिंक तीन बहादुर को भी किया था। तीन बहादुर को भी शर्मीन ने जो बनाई थी उसको भी किया था। अच्छी बात है यार, एनिमेटेड बच्चों का कंटेंट। ISPR की जानिब से हमें पता है कि DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का ये ब्रेन चाइल्ड है जी। सो गुड प्रोजेक्ट, आप भी देखें और हमें अपना फीडबैक जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। ठीक, शायद आपके बच्चे एंजॉय करें। ठीक, हाँ जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, बादशाह बेगम। बादशाह बेगम, अच्छा आपने कहा कि क्या चाहते हैं आप? क्या थी ये किस्त, समझाएं थोड़ा सा। ये किस्त थी कि जी गुलनार एक अनार की तरह है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, ये हमें पता चला। बाय द वे, गुड परफॉर्मेंस बाय कासिम देयर। तारा, हाँ, कासिम ने बहुत अच्छी अदा की। वो सीन बड़ा अच्छा था। वो सीन अच्छा था, आइसोलेटेड वो सीन बड़ा अच्छा था। दोनों एक्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया और हमें पता चला कि वो कितने उनके कैरेक्टर्स हैं। फिर हमें इस एपिसोड में पता चला कि जो बख्तियार की अम्मी हैं, शी इज़ नॉट ऑल देयर मेंटली बिकॉज वो उसको ले आई हैं और फिर वो बादशाह बेगम कह रही है मेरे बेटे को बचा लो। तो भाई आंटी आप लाई क्यों हैं उसको, जब आपको कहा गया है कि इसकी जान यहाँ खतरे में है, व्हाई वुड यू ब्रिंग हिम हियर? और तो शी इज़ नॉट ऑल देयर, ये बात समझ आ गई है। और ये भी बात समझ आ गई कि जो बादशाह, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि आर दे पुटिंग वुमेन इन पोजीशंस ऑफ पावर सो दे आर लाइक हॉस्टेज टू द सिस्टम, क्यों शादियां नहीं कर सकती? आई डोंट नो, ये एक बात पता चली 17वीं एपिसोड में आप ये सवाल पूछ रही हैं। और फिर ये पता चली बात कि
जहाना को और बख्तियार को एक दूसरे से कितना प्यार है. How did you like that scene? अच्छा था, Performance wise कैसा? बहुत अच्छा था. परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे. I think अली और ज़ारा ने उस सीन में बहुत हाँ, जान डाल के काम. पैशन डल जाता है. बादशाह बेगम की अच्छी बात ये है हाँ. कि पैशन डालने में वो अच्छा काम करते हैं. हाँ. और ये हुआ इस पूरे एपिसोड में. और कैसर के सेबों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपकी याद आई, आपने कहा इधर केसर तो के सेब. सेब नहीं खरीद के, तो सेब बंदा कहीं भी खा सकता अच्छा, है. तो खरीद वो के तो अगर होगा. उग रहे होते तो फिर मुझे होता तो. उसने कहा गुलनार को ले आओ. मुझे हमजा सुहेल बहुत अच्छा लगा. बड़ा स्मार्ट लग रहा था वो अपनी हम्म. वाइट पतलून कमीज में जब वो वॉक कर रहा होता है बख्तियार के साथ खेतों में. तो मुझे अच्छा लगा वो. मुझे वो सीन भी अच्छा लगा जो शाहजेब और जुलेखा के बीच में होता है. हाँ, वो भी अच्छा. आइसोलेटेड सीन्स बड़े अच्छे थे. तो सारे ही तो आपको अच्छे लगे हैं. कलेक्टिवली इसका मकसद क्या था? ये नहीं, सारे सीन आपको अच्छे लगे हैं और फिर आप कह रही हैं कि मुझे इट्स लाइक अ पिक्चर बुक. यू लाइक द सीन्स बट इट जस्ट डजंट कम टुगेदर. दैट्स द प्रॉब्लम. सो जैसे पुराने जमाने में एल्बम्स होती थी. ये दिस इज प्रॉब्लम विद बादशाह बेगम. इट्स लाइक अ पिक्चर बुक. यू लाइक द सीन्स, they look very pretty, they like, you like, but then together it just doesn't come together. It's like a box of chocolates. You know what you're going to expect in the next scene, but something nice. Okay. बस कुछ और नहीं. ठीक. Moving on to then चुराहा पे आते हैं. दुश्मन. यार दुश्मन की केस बहुत अच्छी थी. दुश्मन की केस बहुत अच्छी थी. This is an example of how things are just gelling. They just gel together. Every scene takes you, it leads you to the next. ऐसा नहीं है कि it's not jerky, it's not bumpy. Every scene leads you to the next. अब last time उसने कहा है सोनी किधर है? सोनी पहुंच गई है. सोनी अपने गुच्ची के जूते पहन के एलवी के चश्मे कैसे थे? एलवी के जबरदस्त चश्मे थे और गुच्ची के जबरदस्त जूते. ओके कर दिया? गुड जॉब. हाँ हाँ, अप्रूव कर दिया आपने? अब मैंने अप्रूव कर दिया. सोनी वाज कंप्लीटली वेल इन कैरेक्टर. मैंने कहा मैं पूछूंगा यार कि पसंद आया मुझे सोनी का किरदार. और गुच्ची के जूतों के ऊपर जो मिट्टियां पड़ी हैं तो उसको क्या परवाह. गल तो फिर आई हुई ना, उसको क्या परवाह. बट वेरी गुड, वेरी पावरफुल. और वो मतलब लग भी सही रहे थे. वो सही लग रही थी यार. वो नहीं मतलब फेक नहीं लग रही. नहीं फेक नहीं लग रहा था. वो खुद भी फेक नहीं लग रही थी. खुद भी फेक नहीं लग रही थी. शी लुक्ड द पार्ट. So played by Rose, जैसे मैंने आपको बताया, Mathira's younger sister. Mathira's younger sister in the character of Sony, who's become a barrister. हाँ. और And she's come from London. She's come from and London. so she looks like she's come from London. She looks like she's come from abroad. And जिस तरह वो ट्रेन स्टेशन पे उतरती है और पूरा उसका entourage होता है बहावलपुर ट्रेन स्टेशन में. वेरी गुड, वेरी वेल शॉट. और आप सोचें कि उन्होंने कितने आर्टिस्ट को, जूनियर आर्टिस्ट को इन्वॉल्व किया होगा उस सीन के लिए, क्योंकि वो पूरी लाइन से कितने लोग इतनी गाड़ियां नहीं थी बाद में. मैंने कहा इतनी तो गाड़ियां नहीं दिखाई जितने बंदे दिखाते सारे गए कितने चले गए होंगे पैदल. मगर बड़ा फ्लो था एपिसोड में. वो पहुंचती है, वो कब्रिस्तान जाती है, वो कब्रिस्तान से घर जाती है. आई फाउंड हर फर्स्ट इंटरेक्शन विद हर मदर लिटिल ऑड. बड़ा कोल्ड वापस में मिलती हैं. इतनी वार्मथ नहीं होती, बट शायद इनके घरों में ऐसे मिलते हैं. नॉट अ लॉट ऑफ इमोशन. इंसिडेंट भी ऐसा ना. हाँ, बट फिर तो गले मिल के रोना चाहिए. वो उनकी पहली बार थोड़ी हुई है मौत घर में. ये भी बात है. हाँ, यही बात है ना. वो इतने उनकी हुई है वफात हाँ, पहले हाँ, घरों में कि वो सर्टेन मतलब टू एन एक्सटेंट देयर इमोशनलेस नाउ. हाँ, माँ अभी तक नहीं रोई बेटे के मरने का. कहाँ रोई है वो? माँ कहती है मैं तो मकसद ही अभी है कि बदला लो. और जो आपकी सस्सी है, she's lurking in the shadows listening to everything and then she tells. Good performance by Do you think so? You don't think so? I don't know. I'm confused. सबीका की परफॉर्मेंस के बारे में. I'm confused about the performance. In some scenes it appears कि यार कि मेहनत के साथ ये हुआ. For example, that scene with Ranja कि मुझे लेके चलो उस घर में, and when she actually tells him कि मैं वारिस की बीवी हूँ. I thought that was a good scene. That was a strong scene. ठीक है. Yeah. और वो जो scene था बाबा के साथ, वो सीन भी somehow मुझे कैरेक्टर सस्सी का because of the performance मैं उसको अपना दिल नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी. आप उसके लिए मेरे साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं हो रहा सस्सी का. नहीं हो रहा. You're not feeling any sympathy for her? I mean, if I close my eyes and think that there's a character called Sassi who's in love and she's pregnant and her husband died, I feel sympathy for that character. But जहाँ तक performance की बात है, मैं connect नहीं कर पा रही. So then तो फिर that means that हाँ, मैं नहीं कर performance wise मैं नहीं कर पा रही connect. ठीक है. मुझे नहीं. It's not like Nadia Afghan's character. I mean, it hits you. Her performance. What about Mail Ali?
टारगेरियन। माई टारगेरियन जो है वो भी आपको अपने कैरेक्टर में सही है बिल्कुल। अच्छा, मेरा वहां पे एक एतराज ये है कि माई लाली को इतना आपने स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल दिखाया गया, वो एक मुलाजमा से मतलब बेवकूफ बनती जा रही है और वो एक मुलाजमा पे इतनी डिपेंडेंट हो गई है। और ऐसा भी राज, जैसे पिछली बार भी हमने एस्टैब्लिश किया था कि ऐसी कोई सीक्रेट उन्होंने राज नहीं रखा हुआ, सारी दुनिया को आधी वो खुद ही बता देती माई लाली ऊंची ऊंची आवाज में बात करके। या तो होना कि वो डिपेंडेंस का कोई मकसद हो कि यार कि राज है, किसी और को पता नहीं चल सकता। माई लाली ये काम खुद भी तो कर सकती थी, अगर इतना राज है कि कोई नहीं कर सकता, बेटा कर सकता था, जैन जाके कर सकता था। तो ये जो मुलाजमा का किरदार है इसकी क्या रेलेवेंस है? और ये माई लाली को इसने एक तरह से आगे लगाया हुआ है। तो मुझे माई लाली की अथॉरिटी पे शक होने लग गया कि माई लाली की इतनी अथॉरिटी भी है कि एक छोटे से मतलब कैरेक्टर ने उसको इतना आगे लगा दिया। बिल्कुल, वो मुझे that doesn't make sense। doesn't add up। हाँ। दूसरा ये है कि अब मुझे ये थोड़ी सी मुझे समझ आई कि क्यों सस्सी सच बता नहीं रही घर वालों को, क्योंकि वो सुन लेती है कॉन्वर्सेशन जहाँ पे वो जो आई है लंदन से, क्या नाम उसका, सोनी कहती है कि मैं तो इनका जीना मरना हराम कर दूंगी, मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगी नहीं। और ये भी कॉन्वर्सेशन हुई है कि एक बेटी भी है, देखी है कभी नहीं देखी, जिसे हमें पता चला, जो हम पूछ रहे थे किसी ने देखा, तो कह रहे थे कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो इसलिए अब वो रांझा बहुत बड़ा राज लेके निकला है, तो उसके तो ही नीड्स टू मेक वाइज डिसीजंस नाउ। हाँ, और वो वहाँ जाते हैं निकाहनामा लेके, वो ऑलरेडी जा चुकी है, वो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला है कि तुम संभाल के रख लो जी। तो अब रांझा कहता है कि कोई बात नहीं है, तो कोर्ट से भी निकल आएगा, मैं निकलवा लूंगा, नॉट एन इशू। ओवरऑल आई थिंक दुश्मन इज एंजॉयबल, मजा आता है देख के। छोटे मोटे जो फ्लॉज हैं वो हैं अपनी जगह। अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट व्यूज नहीं आ रहे, 70,000 व्यूज थे जब मैंने देखा, 60-70,000 व्यूज से कुछ भी नहीं है ड्रामों, पाकिस्तानी ड्रामों के एतबार से। बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। आप सबका, हम सबका राइट बनता है कि हम थोड़ा सा सपोर्ट करें इस कंटेंट को, ताकि जो कैनवस हमारे कंटेंट का है वो असल में वसी हो, सिर्फ बातों की हद तक ना। सही बात है। मूविंग ऑन टू आमना चौराहा। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे पता है बहुत कुछ हुआ है और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग 2 एपिसोड्स थी और कहानी मूव फॉरवर्ड। मेरा जो एतराज़ है ना, वो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एड्रेस करें और इसका कोई परमानेंट अब सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, ये जो जनाजों के ऊपर, मैयतों के ऊपर ये जो हमसाए बैठ के और ये जो बकवासियात शुरू हो जाते हैं ना, आई हैव हैड इट नाउ। आई हैव हैड ये जो भी ये स्टोरी राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर ये सोचते हैं चैनल्स के, यार कि ये हमने कराना है, भाई खुदा का वास्ता है इसको बंद करा दें। हमसायों का आना, हमसायों का तीली लगाना, हमसायों का आके सामने बैठ के उनको जलील करना, इसको बस कर दें यार। होता होगा, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, नहीं होता, लेकिन हर ड्रामे में हर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो लोग भी होते हैं जो आके सिंपैथाइज भी करते हैं। कोई तो कभी एक सिंपैथी वाला भी शो, अच्छे लोग भी तो होते हैं। हर ड्रामे के, हर चैनल के, हर ड्रामे के, हर मोहल्ले के हर बुरे इंसिडेंट पे यही होता है। हर मैयत पे ये होता है, हर शादी टूट जाने पे ये होता है, तलाक पे ये होता है, हर बार ये होता है कि वो आएंगी 3 औरतें। मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई अच्छे मोहल्ले हैं ही नहीं यार। Why it's become so annoying now? Because it's so repetitive and now it's so predictable. And in most cases you've got the same actors doing these jobs. वो XYZ ड्रामे में भी वही सपोर्ट कास्ट होगी, जो ये बनी होंगी हमसाए, इधर भी वही होंगे। It's unfortunate, Hassan, because it takes away from the story, which is actually very strong. Such a strong story. I can't stress that enough. इतना और इतनी well crafted और well executed story. अच्छा, अब मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार जहाँ फप्पे कुटनी फप्पियाँ होती हैं या बुरी नंदे होती हैं, वो कभी नहीं मरती, और यहाँ जाके उन्होंने दिखाया कि एक अच्छी फुप्पी है, अच्छी नंद है, अच्छा रिलेशनशिप है, एक उनकी उनका सिस्टरहुड है, और ये ज़रूरी था इनको मारना, लेकिन फिर ज़रूरी था बिकॉज फिर सलीम साहब पिक्चर में कैसे आते हैं और कहानी आगे चलेगी, तो उनको मारने का मकसद कहानी को फैसिलिटेट करना था।
but I'm going to miss having Bushra Ansari around. बुशरा अंसारी साहब ने बड़ा बहुत जबरदस्त काम जबरदस्त, किया। बहुत जबरदस्त। ये देखें, ये बात होती है जो हमारे वेटरन बड़े अदाकार हैं, जी। उनको आप इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी एपिसोड्स के नहीं, लिए थे, एग्जैक्टली। जितनी भी एपिसोड्स के थे, इतना इम्पैक्टफुल काम करके जाएंगे, आपको आप उनको मिस करेंगे यार, कि किरदार आप मार दिए किरदार को, तो विल मिस The second thing, यार, I love the fact that they're talking about this middle-aged, बल्कि upper middle-aged woman who's a widow, नहीं divorcee, क्या widow divorcee है? Widow, उसकी दूसरी शादी। I love that. Why must we cast people in one light कि अगर माँ है तो माँ ही बने, अगर सास है तो सास ही बने? नहीं यार, औरत है, बीवी भी बन सकती, नहीं, अगर बीवी है तो सिर्फ बीवी बने, नहीं, आप मल्टी डायमेंशनल दिखाएं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार एक सलीम साहब हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनमें, और वो कहते हैं हाँ मैं करूँगा शादी। आई लव इट, आई लव दिस कॉन्सेप्ट। सो इतना प्रोग्रेसिव भी है। अगर ये सीन ना डालते जनाजे वाला, कितना अच्छा होता। जनाजे से पहले आपने फुफ्फो को मारा है, हाँ, पैर फिसलते हुए आप दिखाते थे, हाँ, आप वैसे स्ट्रेस से कहते यार हार्ट अटैक आ गया, हाँ, आप को एक्सी रक्षे से टक्कर करा देते। क्या कराया आपने दिखाया हम आई हैं पड़ोसने, हाँ, उन्होंने आगे बातें सुनाई हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो फौत हो गई। यार मुझे मैं फिर दोबारा हार्ट अटैक हुआ ना, हार्ट फेल हुआ उनका, होता होगा, नहीं वजह जिस वजह से हुआ कि पड़ोसने आई और उन्होंने आके जलील किया। नहीं, लेकिन उसका बिल्डअप था ना, बिल्डअप था पूरा, किडनैपिंग। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो एक हम दिखाते हैं ना कि आपके पड़ोसी हैं या कोई रिश्तेदार हैं, वो आते हैं, वो बैठ जाते हैं और वो आके आपको तानाजनी करते हैं, वो आपकी जिंदगी बदल देते हैं आके। जब आपने एक पड़ोसी दिखा दी अरसल की माँ की सूरत में कि यार वो नेगेटिव है, वो कितनी नेगेटिव है यार। वो सीन भी बहुत बुरा था। वो जो आटा गूंद रही है, नहीं वो आई है, और जो पिछले हफ्ते था जो आगे वो बातें सुना के गई, पिछले हफ्ते था, वो भी बड़ा अनोइंग था। बट चलो एक दिखा दिया अब आपने पूरा मोहल्ला ही ऐसा दिखा दिया। उनका तो मकसद है ना कि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा शादी करे। हाँ, तो वो समझ में आता है। मुझे एक बात बताएं, जितने मोहल्ले इस तरह के होते हैं, आपको लगता नहीं है कि ये ज्यादा क्लोज निट होते हैं? मेरा ख्याल है एक्चुअली बिल्कुल कि यार कि बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम होता है इन मोहल्लों का, तो बड़ा, हम रहे हैं जेलम में मोहल्लों में, तो वो तो बड़ा एक दूसरे को यू नो ईच अदर, और बड़ा नहीं, जब हम बड़े हो रहे थे तो दादा जान यूज्ड टू लिव ऑन फिरोजपुर रोड, वहां उनका घर था पूरा, एंड इट वाज अ वेरी क्लोज निट मोहल्ला। अब उस मोहल्ले में मुझे याद है कि जब हम स्कॉटलैंड से आते थे, आई वुड बी लाइक 3-4 साल की मैं होती थी, मुझे ठंड की आदत होती थी, तो मोहल्ले के जिस आंटी के घर में एसी होता था, वहां पे मैं दोपहर को सोने जाती थी। जहाँ पे WC बाथरूम था, वहां मैं बाथरूम जाती थी, एंड इट वाज सच अ क्लोज निट मतलब मोहल्ला। आई रिमेंबर दीस थिंग्स, एंड देयर वाज सो मच, देयर वाज सो मच कैमराडरी। वो हम देखते ही नहीं है मोहल्लों में। तो मे बी इस टाइम क्या है, आई एम सॉरी ये फोकस हिट गया, बट ये बड़ा अनोइंग है। यही फोकस है, ये बहुत अनोइंग है, प्लीज। अच्छा, दूसरी मुझे आपकी बात याद आती ही जाए कि जो जूनी है हमारा, उसने मुंह क्यों नहीं ढका यार, वो क्यों नहीं डर रहा? जूनी नहीं, जॉनी। हम इतने जुनेद को डील करते आ रहे हैं, हमने कभी जॉनी सोचा ही नहीं है उसका निकनेम। तो जॉनी तो जानी को उन्होंने पूछो, हूं तो मुंह छुपाने फिर रहे, फिर भी नहीं जा। अच्छा, उसको पता था वो उस लड़की के घर जा रहा है, पता था ये नहीं पता था? कॉन्शियस उसकी जाग गई है बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, अब एक और बड़ा इसका इशू है, बड़ा एक इशू है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इनसाइट लूं। क्या कहेंगे, शादी होती है अंकल आंटी के लिए बहन भाई होंगे? वो तो बहन भाई तो होंगे, वो तो फिर भी कर सकते हैं शादी, बिकॉज वो रजाई बहन भाई नहीं होंगे। ये जो आपने एक दिखाया है किडनैपर को, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट अ नाइस गाय, लड़कियों को किडनैप करता है, और हमने अगले एपिसोड के प्रोमो से देखा एक दूसरी लड़की उसके पास आके कंप्लेन भी करेगी और कहती भी है कि देखो ये होती है, इस तरह से जिंदगी। वो तो हमें दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितना गिल्टी हो रहा है। अब बात ये है कि ये जो कहानी है दिखाई जा रही, इसकी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के बारे में आपकी क्या राय है कि ये ठीक है? हाँ, ठीक है। एक ऐसे पर्सपेक्टिव से दिखाना कि एक मर्द लड़का वो एक क्रिमिनल एक्ट कर रहा है कि लड़कियों को अगवा कर रहा है और उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा है। वो पैसे, जैसे आपने खुद ही कहा, रॉबिन हुड बांट भी रहा है, और वो उनकी इज्जत पे भी नहीं हाथ आने देता। उसके जो किडनैप करने की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, जो उसका साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हिज किडनैपिंग्स हैं, उसका एहसास उसको अब हुआ है, और हो गया उसको एहसास, क्योंकि उसको पता है कि उसकी वजह से उसकी पुप्पी फौत हो गई, उसकी वजह से लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और वो अब ही इज़ इंट्रोस्पेक्टिंग एंड ही इज़ कमिंग टू हिज सेंसेस। तो मेरे ख्याल ठीक है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ हसन कि आपको बेनिफिट, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर आपको देना चाहिए हर कैरेक्टर को, बिकॉज अदरवाइज तो कोई फॉरगिवेबल या रिडीमेबल सिन हो ही ना।
But we talk about redemption. नहीं, and मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम अब तक जो देखते आ रहे हैं उसमें फोकस है जोया के ऊपर जी कि जोया, और ये हमारी रेलेवेंस कितनी इस्टेब्लिश होगी। अभी हम कल मिनाल की बात कर रहे थे अपनी हॉट बाइट्स में 2 दिन पहले, उसकी रेलेवेंस भी उसमें आगे जाके मिलती है कि जो हमारे आज की यूथ है वो इतनी इम्प्रेशनेबल है, और ऑल्सो वो इस रट में फंसे हुए हैं कि उन्होंने अपनी एक इमेज दिखानी है सोशल मीडिया के ऊपर। वो एक बड़ा रेलेवेंट और बड़ा एक मुझे लगा कि वो इस कहानी का फोकल पॉइंट है जी। अब जो फोकस है वो सॉर्ट ऑफ शिफ्ट और डिविएट कर रहा है टुवर्ड्स जुनेद एंड द फैक्ट कि यार कि ये किडनैपर जो था बुरा काम कर रहा था, बट इन हिज हार्ट, एट हिज हार्ट, ही इज नॉट दैट sort of an evil person, that bad. So मेरा ये है कि क्योंकि आजकल के अगेन ये कहानी है, ये राइटर का प्रोगेटिव है, ऐसी कहानियां सुनाना बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बट आजकल का जो माहौल है, हम जिस तरह देखते हैं किडनैपिंग्स हो रही हैं, असॉल्ट हो रही है, खवातीन के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में नहीं बोलूंगा, हर रोज पेपर्स में, अखबार में, टीवी पे हम ये सुन रहे होते हैं कि यार के नेबर ने किसी ने किडनैप कर लिया, ये वहां से। सो इन अ वे आप सिंपैथी नहीं जनरेट कर रहे किडनैपर्स के लिए इस तरह की कि यार कि उनका कोई मकसद होगा या कोई चीज होगी। आई एम जस्ट सेइंग, इज दिस अ टोन डेफ मोमेंट फॉर द राइटर एंड फॉर द क्रिएटर्स, यू थिंक, या यू थिंक इट्स फाइन? No, maybe you can see it in the other way. Flip side अगर आप देखें तो maybe जो किडनैपिंग करते हैं वो देख के सोचेंगे कि यार हमारे इससे कितना पूरे खानदान उजड़ जाते हैं। पर मेजॉरिटी ये वही वाली बात होगी है कि मर्दों की सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है या नहीं होती, होती है, या जो फॉल्स एलिगेशंस की हम बात कर रहे थे कि एक औरत फॉल्स एलिगेशन लगाती है या नहीं, तो आप उस औरत की कहानी दिखाना चाहेंगे जो फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, या वो जो 98% है जो मेरे ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा आप दे सकते हैं मार्जिन ऑफ एरर, यहाँ दे सकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये टोन डेफ मोमेंट है? नहीं, ठीक है, मैं भी कोई ये कह नहीं रहा कि टोन डेफ मोमेंट है या नहीं है, आगे चल के मजीद इस पे क्लैरिटी मिलेगी। बट आपने जॉनी का कैरेक्टर पहले एपिसोड से आपने बहुत इविल कास्ट या बहुत अनलाइकेबल नहीं किया, बिल्कुल भी। वो अपनी बहन के साथ भी प्रोटेक्टिव है, और उसका जो बहन के साथ कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी क्यूट होती है। वो कहता है भेजो उसको, क्या मैं करूँ फोन, क्या मतलब मुक्का टाइप मारता है उसको बहन को, यू नो, प्यार से। वो बड़ा he's not shown as a totally bad character. He's not an unlikable character. ठीक है। So I think margin of error बनता है. We also need to open our sort of horizons a bit. ठीक है। ये characters हर किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पे एंगेज करना चाहूँगा। आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या थॉट प्रोसेस है। वन थिंग इज फॉर सर्टन कि चौराहा की जो निटिंग हुई है और जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं या एक आप सिंपैथी जनरेट कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, फ्लिप साइड है, आपने देखा है यार उसका क्या आउटकम है उसकी किडनैपिंग का। भले उसने उसकी इज्जत पे हाथ नहीं आने दिया, उसने उसको वापस भी छोड़ दिया, बट उसका जो आफ्टरमाथ है वो इतना सिवियर है कि सो अगर कहानी अब आफ्टरमाथ पे शिफ्ट हो जाती है, मेरा सिर्फ इसमें ये है कि ये जॉनी की कमिंग ऑफ एज स्टोरी, व्हाई नॉट, मे बी बोथ ऑफ देम, बिकॉज़ आई मीन दोनों की कहानी है ना। उसमें मुझे होता है ना कि फिर शायद आप आगे कैसे चलती है, बट लेट्स सी बॉटम लाइन ये है कि आपके जो जॉनी जानी पुलिस वाले थे उनके बारे में आपका क्या ख्याल था? ओ हाँ, मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहूंगा, कल ही हमने एक वीडियो देखी है जी। A lady doctor is being harassed and beaten up at a police station, so I take my words back, और it's quite unfortunate। बहुत सारे हमारे अपने व्यूअर्स ने लिखा, हमें कमेंट्स भेजे कि उनके किस तरह के ऑफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं पुलिस स्टेशन में। माय कंडोलेंसेस विद एवरीवन जो इस तरह के वाकयात, अल्लाह ना किसी का पाला, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ। तो माय सिंपैथीज एंड माय कमिसरेशंस with everyone who's gone through such a traumatic experience with our police, and I hope, wish and pray कि टीम हाफिज जो है वो शायद पुलिस की तरफ थोड़ा सा करें और ये बेहतर हो निजाम है। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, और वो भी बड़ा एक क्रिंज, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आप फील करते हैं, डिस्टर्ब कितना वो हाथ पकड़ता है, उनकी लाचारी नजर आती है। हाँ, और उनकी आती बेचारी माँ की यार चाय बनाने जब वो जाती है जिस तरह से, बिल्कुल तो वो अच्छा है। अगेन चौराहा की बात यही है कि वो आपको जिस तरह से एंगेज करता है और जिस तरह से उसने किया हुआ है, ये अपनी जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, ये वीकनेसेस ये अपनी जगह, और एक जो सवाल मैंने उठाया वो भी अपनी जगह। बॉटम लाइन ये है कि बड़ा वेल क्राफ्टेड ड्रामा है। बिल्कुल।
तो And I have to say that they've all performed very well. very well. Sabah Hamid has performed so well, and Madiha Imam has performed so well, and Mikal Zulfikar has performed so well. बुशरा अंसारी साहबा की वो परफॉर्मेंस तो खैर हम हम कह कह चुके हैं बहुत जबरदस्त So the performances are very good. असद की परफॉर्मेंस भी बहुत यार असद मुझे he's such a good character. I mean the way he tells his mother के problem मुझे इस बात से नहीं आपस की बात से है. Very well, very nice character. वो ना you connect with the character immediately. very well performed by जी, असद. very well performed. ठीक है. Moving on to आमना जी हब्स. जी. हब्स की जी 8वीं के हब्स जी 8th episode of हब्स. क्या कहना चाहेंगी आप? बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है. मैं तो एंजॉय कर रही हूँ हब्स बड़ा. मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ. अच्छा ड्रामा है. हाँ. मजे का है. हाँ. बड़े अच्छे मोमेंट्स थे. अगेन देयर वर सम वेरी रिवेटिंग मोमेंट्स इन दिस आपका अगर बॉस हो ऐसा होता जी. और आप आयशा की जगह होती जी कहता आपको प्रपोजल जी तो आप वही वजह से डिक्लाइन कर देती जिस वजह से आयशा डिक्लाइन कि कर प्यार नहीं करता. वहाँ वो कहती है ना कि इसको प्यार तो नहीं, इंटरेस्टेड तो नहीं है ना, इसके अपने मसले मसाइल हैं, इसने मुझसे झूठ अम्मी के साथ. मैं एब्सोल्युटली क्वेश्चन तो करती कि यार इसका पर्पस क्या है इसका. व्हाई डज ही वांट टू मैरी मी. मना कर देती हैं. आप कहती हैं कि हैव अ कन्वर्सेशन विद मी. नो हैव अ कन्वर्सेशन. अब मेरे हाल वो भी इस तरफ आ रही है. एंड ऑफ पहले उसने कहा कि नहीं करनी. एंड ऑफ द एपिसोड तक उसको भी वो था. बानो ने फिर उसे अकल दिलाई. बानो ने बहन ने भी कहा ना, जोया ने भी कहा इतना हॉट है तो फिर तुम जरा सा तो. अच्छा जोया जो थी ना वो भी बड़ी अच्छा कैरेक्टर है. वो चेन उधर से लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही डुली हुई है उस पे. नहीं फौरन तैयार चल रही है. तो वो एंड तक आयशा पर हो गई थी कि हाँ कन्वर्सेशन कर लेते हैं. बट क्या बात है तो उसको सच बताएगा कि नहीं. आई होप बता दे. अगली एपिसोड के प्रोमो से तो ऐसे ही लग रहा है. वो बता रहा है कि मेरी मदर मुझे छोड़ के चली गई थी और ये हुआ है. और नहीं वो छोड़ कहना तो मुझे औरतों से नफरत है या ये कहना कि बाप की विल थी कि शादी करनी है. वो बताएगा बताएगा. लेकिन माँ ने ये बोला कि तुम ये मत बताना कि हमारी क्या डील हुई है. सो इनकी जब क्या डील हुई है इनकी कि घर में आपके नाम करा दूंगा. उसने बोला ना कि घर में आपके नाम करा दूंगा. और फिर वो इसकी माँ ने, आयशा की माँ ने. हाँ आयशा की माँ ने. और आयशा की माँ के अंदर तो आपको आंखों में डॉलर साइन नजर आ रहे थे ना, जैसे कार्टून. माँ के अब बताएं, मैंने आपको कहा था पिछली बार माँ के नहीं यार माँ इज नो evil है माँ. evil देखिए why do you cast things as either sinful or saintly. को मिडिल भी तो ग्राउंड होती है. शी इज नॉट अ नाइस कैरेक्टर यार. पैसे के पीछे वो अपनी बेटी का कर रही है, सौदा कर रही है. बिल्कुल कोई नहीं है कि वो आगे से क्या पता अब्यूसर हो, परवर्ट हो आगे से. शी डजंट नो दिस मैन फ्रॉम एडम. सिर्फ पैसा दे के बेटी की शादी भी है ना कि मिली तो है नहीं. एक बार मिली तो है नहीं तो नहीं. हाउ कैन यू से दैट माँ है तो वो अच्छा कर सोच रही है. बिल्कुल भी नहीं यार. नहीं वो आ वाली बात है. डॉलर साइन नजर आ रहे हैं. डॉलर साइन नजर आ रहे हैं आंखों में. टक 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 जिस टेल साइंस आते हैं. वो मालिक मकान आता है उसको कहती है मैं खरीद दूंगी ये मकान. बस एक हफ्ता दे दो. हां एग्जैक्टली एक हफ्ता. डॉलर साइन नजर आ रहे हैं. शी इज नॉट. अच्छा मुझे बताएं, आप अगर आयशा की जगह होती जी और मैं समझने के लिए कि वो फिरोज खान जैसा हॉट एक बंदा होता, बॉस होता, पैसा भी खुला होता, वो कहता मैंने शादी करनी लेकिन ये मसला है विल की वजह से और ये कर रहा हूँ. वुड यू स्टिल डू इट? Yeah. Look at my options. Look at where I'm living. Look at my mother. Look at what my sister has gone through. Look at the struggle my family is going through. बज़ाहिर एक अच्छा भला बंदा. But it'll probably be a loveless marriage. So many women get into loveless marriages and they live loveless lives. तो अपने आप को सैक्रिफाइस कुर्बान कर रही है ना फिर आयशा. नहीं, maybe she feels कि हो जाएगा. कितने लोगों में शादी के बाद प्यार बन जाता है. But she would need to be sure that he's not a bad person. He's not a bad person. वो उसने साबित कर दिया कि वो नहीं है. जो 2-3 उसकी दफ्तर में इंटरेक्शंस हुई हैं जिस तरह जो तब तक उसके दिमाग में ये बात आई भी नहीं थी. उसने उसकी ऑनर के लिए उस बंदे की कुट चाड़ दी. पैसे उसको दे दिए जब उसने मांगे. और वो कहता भी है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मुझे तुम्हारी हेल्प की. अब सही उसने इक्वल नहीं है बासित. हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली. उसने बासित ने ऐसी कोई मायूब हरकत नहीं की कि वो कहे और वो सीधा माँ के पास चला गया. ही इज नॉट अ शमशेर कि बंदा कह के यार मुझे तो बंदे से डर लग रहा है. और दूसरी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसकी माँ ने बोला कि हमारे यहाँ तो माँ ही फैसला करती हैं. उसने बोला नहीं, आप उसकी परमिशन पूछ के मुझे बताएंगे फिर. हाँ ये अच्छा है उन्होंने. नहीं तो उसमें तो कोई गलत है ही नहीं बासित में. सिवाय ऐसी कि ऑब्वियसली इसके इमोशनल इश्यूज हैं बट वो बता देगा. ये हरासमेंट के जुमरे में नहीं आता. ऑफ कोर्स नॉट. वर्क प्लेस हरासमेंट के जुमरे में नहीं आता. नहीं हसन क्या हो गया है ऐसी छेड़खानी कर रहा थोड़ी सी. जी नहीं आई थिंक इसमें अच्छे मैसेजेस थे. बिल्कुल. जैसे मैंने ये कहा कि आपने
दिखाया है उसको ये कॉन्वर्सेशन करते हुए कि आपने पूछना है उससे जी और वो भी फौरन ही हामी नहीं भर देती जी उसकी एक्चुअली बहन उसको कन्विंस करती है यार वो तब बड़ी सच्ची बंदी है जब उसको फोन पे कहता है प्लीज मेरे पे एक एहसान करें अम्मी को बताएगा नहीं निकाह नहीं हुआ वो जाती कहती है हमारा निकाह नहीं कि हुआ वो नहीं हुआ हाँ वो बता मगर हम करने बट जा वो रहे हम हैं। कर रहे हैं बट तो ठीक ये है। क्यों कहा फिर भाई उसने उसने कहा सच्ची ना कि बंदी मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरी मदद करो तो वो लीड दे देती है बट झूठ नहीं बोलती फिर भी कहती बट हम करने जा रहे हैं ठीक है और ये जो पूरा जिस तरह से लीड किया दैट्स आल्सो बिलीवेबल कंगन भी आ गए कंगन और माँ और वो सब देख रहे होते हैं हाँ। कंगन किस तरह हाँ। के तो जो जिस तर्ज से ये कहानी यहाँ तक पहुंची है The only annoying character in this house is the puppy, बॉबी पुपी Bobby puppy. व्हाई I don't know, it's just a really unappealing character. I mean, एक जरूर उन्होंने बीच में लालची पुप्पी डालनी होती है माँ इतनी बड़ी लालची है आपने एक काफी था ना बंदा हम्म ये चेन उतरवा ली इधर की उधर जरा सा मीसनापन थोड़ा पप्पी कुटनी टाइप नॉट अ नाइस कैरेक्टर वी जज कैरेक्टर्स ना कि भाई क्या है और क्या नहीं है तो ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है मैंने शुरू में कहा था कि हब्स की पेस मुझे स्लो लग रही है जी बट अब ये एस्टैब्लिश Pick हो कर चुका गया है है। कि वो इस तर्ज जी। पे बना हुआ ड्रामा है जी तो जरूरी नहीं है कि हर ड्रामे में हर बार डस 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 नहीं, डस बैंग नहीं, बैंग 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 नहीं, बूम नहीं, बूम बूम नहीं। बूम होती रहे तो ये जिस तरह से नहीं, जा Hubs रहा is है very enjoyable हाँ। and you know और भी इसमें क्या और एक सीन था जो कि बड़ा यार तीन बहनों का जो एक चारपाई पे सीन होता है हाँ बड़ा स्वीट वेरी रियली लवली Very सीन cute scene. लवली सीन और वही वो बात कहते है कचरे की देर से तुम्हें उठा के लाई हैं और हक करते हैं तीनों स्माइल करते हैं द थिंग इज कि उन्होंने बानो का ट्रैक किया है स्ट्रेच ये एपिसोड भी बानो से शुरू होता है बानो का ट्रैक स्ट्रेच किया है इसमें कोई शक नहीं है एंड आई फील बैड फॉर द एक्टर बिकॉज शी इज अ गुड एक्टर एंड शी इज प्लीजिंग एंड she's got a bit of charisma as well and ऐसा नहीं है कि she's an unlikable character मैं तो शुरू में भी आपको कहा था कि I connect with Bano's track बहुत खींचा है इन्होंने अभी तक खींचने की कोशिश कर रहे and हैं that's got nothing to do with the actor with the actor any actor would Yeah. have been playing could have played this character and would हाँ. have said the same thing the same thing new or established yeah but that scene I think should be the now end of Bano's misery and you know and अच्छी advice उसको देती है कि यार एक अच्छा लड़का तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आ रहा है कहाँ हम लोग सोच सकते थे देखिए मुझे इसकी बहुत खुशी होगी कि हाँ। बानो को जब उन्होंने बताया कि अब नौकरी नहीं रही कुछ लोगों ने कहा बानो की शादी उससे हो जाएगी लंदन वाले दोस्त से हो भी सकती है हो भी सकती है बट मुझे खुशी अब इस बात की होगी कि वो बानो को जैसे उन्होंने दिखाया जी। कि वो ब्रेकअप की वजह से उसने टोल लिया अपने ऊपर अब वो उससे निकलते हुए बाकायदा दिखाएं कि वो हाँ, अब नौकरी हाँ, भी ढूंढे हमें नौकरी मिल closure भी चाहिए, जाती है हाँ। उसकी शादी भी हो जाती है एंड शी लिव्स हैप्पीली Yeah. ये मैं देखना चाहता हूँ अब इतना मैं बानो में इंटरेस्ट है मेरा हाँ। अब कि अब मैं ये होते हुए वो देखना चाहता चाहता हूँ हूँ। इस ड्रामे के बानो लाइफ को अब आप चौराहे में ना छोड़ दें हाँ आप ये ना करें कि बानो को आप साइड लाइन कर दें हाँ। और उसको करें और उसका प्रॉपर एक कंक्लूजन जी दिखाएं जी बट उष्णा और फिरोज की परफॉर्मेंस दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है little glances you know the way Basit looks at her when she's at the desk the way she looks at him जब वो घर आता है बाद में उसका स्माइल करना उसको इसके बारे में सोच के बहनों ने एंडोर्समेंट दे दी कि नहीं यार अच्छा है तुम सोचो अब आपको याद होगा हम तुम Very में जब nice. हम कहते थे कि आहद और रमशा की केमिस्ट्री के बिल्डअप में टाइम लग रहा है जी और सब कहते थे कि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है जी तो अब यहाँ पे उष्णा और जो फिरोज का कैरेक्टर्स है वो भी ऐसे ही है मतलब ऐसे दे ही नॉट मेंट टू बी लवी डवी No. एट दिस मोमेंट No. बट नहीं केमिस्ट्री का लवी डबी से कोई ताल्लुक ही नहीं है उस बट आप यू कैन हाँ, फील द हाँ, यू नो कनेक्शन Certainly. बिटवीन द टू कैरेक्टर्स certainly और वो बड़ा पैल्पेबल है सो Certainly. दैट्स गुड पैल्पेबल जी well done पैल्पेबल जी। पैल्पेबल ठीक है सो गुड ड्रामा Very good drama. कांग्रेचुलेशंस टू मुसद्दिक आवर फ्रेंड उन्होंने पहला ड्रामा डायरेक्ट किया है एंड आई थिंक ही इज डन अ वेरी गुड जॉब एक बड़ा रैंडम डायलॉग था जो उसकी माँ उसे कहती है लेकिन वो किसी और को पसंद करती है हाँ और फिर वो आगे सिर्फ एमी, हमें प्रोमो में डालने के भाई लिए बड़ा ही रैंडम था बहुत ही फजूल प्रोमो था। में डालने के लिए फजूल हमारा ख्याल था कि शायद वो प्राइस हाइक कर रही है उसकी वजह से लेकिन वो तो बाद में कहती है वो तो मैंने ऐसे ही कहा था नहीं वो कहती हैं कि मैंने अगर वो किसी और को पसंद करती होती हाँ। आपके अलावा तो मैं पता नहीं क्या कोई तुक नहीं था उसका बड़ा ही रैंडम डिडंट था मेक एनी सेंस सेंस एट एट ऑल ऑल हाँ बहुत ही फजूल जी एक मुझे भी याद आई है एक बात घड़ी का टाइम हाँ घड़ी का टाइम पीछे चेंज होता जा रहा था फिर मुसद्दिक। तीसरे सीन में उन्होंने ब्लर ही कर दिया उन्होंने कहा ये कंटिन्यूटी नहीं मैच हो रही Blur एक बार कर 2:04 हो रहे हैं हाँ। एक बार 3:11 हाँ। हो रहे हैं तीसरी बार उन्होंने ब्लर ही कर दिया तो ख्याल रखा करें घड़ियों का वो दूसरे सीन में वो 5 बज रहे होते हैं तो वो घर आता है उनके ये छुट्टी करके आ चुकी होती है तो 5 बजे तो दफ्तरों की छुट्टी एनीवे गेटिंग Anyway, yeah, टू मच okay, बट पीछे okay. ये मैटर करती है हाँ ठीक है इनका भी ख्याल रखा जी ओवर टू वहम
कितने रह गए हैं? वहम और कैसी तेरी खुदगर्जी। बाकी सब भड़का दिया आपने। वहम जी। यार वेरी गुड ड्रामा। Very good drama, absolutely. आई एम सो ग्लैड वी स्टार्टेड वाचिंग। हाँ, I'm really enjoying it, but I'm enjoying it because of Sabera Nadeem and शमीम हिलाली साहब। Absolutely, उनकी जो आपस में रैपो है ना, वो समझ नहीं आ रहा कि मतलब Why is she doing that, right? And who is she talking to on the phone? who is she talking to? Is she talking to her husband? Exactly. Who is she talking to on the phone? Is she? And because There's mystery. आप करके वो ड्रेस कर रही थी। नहीं यार, वो औरत is messing with the poor old woman's head. वो जिस तरह वो Do you कहती feel थी sympathy for लाश। the woman? Which woman? The old woman. No. She deserved it. She's done something to. वो कहती है ना मैंने वहम शक किया कि तुम पार्लर में मर्दों से और तुम मिलती। बदवा दे देती तो बेहतर था, क्योंकि हाय जो लगती है वो ज्यादा जोर से लगती है। बट अगर आप अब होती उसकी, अब आप कहती हैं अच्छा चलो यार बेचारी बुढ़ी औरत माफी मांग रही है, अब मैं जाने नहीं मुझे नहीं पता कितना टॉर्चर दिया उसको। एक माफी से नहीं भर पाई। नहीं भाई, बाद में जाके तो आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही तस्वीर के सामने आपकी नजर आती है कि कहाँ कहाँ आपको किसने धोखा दिया है। इट्स नॉट इजी टू फॉरगिव। अच्छा, बड़े लोगों ने ये कहा जी कि ये जो बाबर अली साहब का किरदार है जी, और सवेरा नदीम साहबा का किरदार है जी, और जो अदनान समद का किरदार है, जी। क्या लिखे इस बार आपने अदनान के किरदार का क्या नाम है? नहीं फिर नहीं लिखा आपने? नहीं। तो वो ये कहते हैं जी उनका लव चाइल्ड होगा, वो लेपालक नहीं है हाँ बच्चा, अच्छा, वो इनका लव चाइल्ड है अच्छा। और इनका कोई सीन था हाँ। आपस में और इस वजह से ये हुआ है। क्या राय है आपकी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर या इस प्लॉट के ऊपर? देखिए कुछ तो है। आपने एक सीन नोटिस किया होगा वेयर ये पूरी बात होती है शादी की एंड वी कट टू क्या नाम है सवेरा नदीम साहबा के किरदार का? रुखसाना। And she's got some sort of letters that she's reading. These are old letters and look like love letters. So one could assume at that point that it could be that Khawar and Rukhsana had a thing going on before she got married. मुझे उससे ये impression मिला कि शायद खावर और रुखसाना एक टाइम पे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे और फिर रुखसाना की शादी हो गई अनवर से फॉर व्हाटएवर एक्सक्यूज और रीजन। उनसे उनका एक बच्चा हुआ, उनसे जो भी हुआ तो वो हुआ जुनैद हुआ। जुनैद इसका नाम? जुनैद ही है यार, नाम तो सोच लें कोई और। जुनैद तो जावियार का नाम है। फरीद हाँ अदनान का नाम है। तो ये हो सकता है कि ये दोनों इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में और क्योंकि जो पहली इनकी मुलाकात हुई है ना वो खाली ये बात नहीं है कि इसने खावर ने धोखा दिया मुझे। मगर आज तो कहती है ना कि जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया उसकी बेटी को मैं आपके साथ अपने बेटे की कैसे करूं? धोखा कैसे दिया है? क्या दिया? ये धोखा दिया कि वो मियां को ढूंढने गया। नहीं या ये तो धोखा नहीं होता। नहीं सर, एड्डे देसी मिन्नी चन्ने मुन्ने काके। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है। तो मेरी अब असेसमेंट ये है कि खावर एंड क्या नाम है शुमैला शगुफ्ता रुखसाना दे हैड अ थिंग एंड इट इज पॉसिबल एक्चुअली कि जो लेपालक है वो उन्हीं का लव चाइल्ड हो और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई हो और नहीं बट उन्होंने नहीं, ये बहुत स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है बहुत ही यहाँ पे। नहीं क्योंकि और भी तो खानदान थे ना वहां पे, तो लेपालक वाली मुझे नहीं समझ आई। हो भी सकता है, यू नेवर नो। We'll see, but there is something mysterious happening in this household. Why is she behaving like this with her mother-in-law who's so old? और वैसे उसके साथ वो इतनी शगुफ्तगी से बात करती हैं, जी अम्मा मैं आपके लिए, और फिर वो ऐसी हरकत कर जाती हैं, यू नो लाश बन के वो भूत बन के खड़ी हुई है, या उसकी चाय में मिर्चें मिला दी, या छड़ी और ऐनक घुमा दी, यू नो शी इज प्लेइंग विद हर हेड। लाइट लेकिन बड़े टाइम पे गई है। लाइट टाइम पे गई है ठीक है, नो बट शी इज कॉन्स्टेंटली डूइंग इट ना, जब मौका मिलता है वो ऐसी हरकत करती हैं। तो वेरी जहां बट हु वाज शी टॉकिंग टू ऑन द फोन? और वो जो लेटर्स थे जो वो देख रही है वो किसके थे? वो लेटर्स। तो ये बात, दूसरी चीज ये है कि जो अदनान समद खान का कैरेक्टर है, बल्कि अदनान समद खान खुद एज एन एक्टर he's got a lot of potential. He's a good actor, but I feel that he's more tuned to be a character actor, जहाँ उनको अपने रोल में अपना लुक या अपना कैरेक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। He is not the kind of actor who can one size fits all. वो वाला situation नहीं है। He will really need to work on his appearance and his articulation because वो बहुत ज़्यादा repetitive होती जा रही है। अब देखिए हम इनको फ्रॉड में भी देख रहे हैं। मुझे फ्रॉड के नाइल में और वहम के फरीद में ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा।
सो जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं उनको अपनी अपीयरेंस को चेंज करना पड़ता है. Why do you think then his performance as Gulzar clicked? So एक तो वो पहली थी, ऊपर से ही वाज प्लेइंग समबडी फ्रॉम दैट तहसील, फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट, तो वो एक्सेंट पूरा, प्लस ही वाज इन कैरेक्टर. लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इस वजह से है क्योंकि अदनान का जो ऐद वफा का कैरेक्टर है उसने ऐसी छाप छोड़ दी है कि वो छाप हट नहीं पा रही अब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी. मुझे याद भी नहीं है उनका ऐद वफा वाला कैरेक्टर. अगर आप पूछें कि जी क्या, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. ऐसी बात है कि उनके अंदर वर्सेटिलिटी अभी ज़रा लिमिटेड है, उनकी रेंज ज़रा लिमिटेड है. आप देखें, हमने उनको उसमें भी देखा, इश्क-ए-ला में भी, उनकी अपीयरेंस, उनकी आर्टिकुलेशन एक जैसी चल रही है. ही विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू ड्रॉप द एक्सेंट, क्योंकि सारी बात है वो एक उनका एक टिपिकल एक्सेंट है जहाँ की वो सराइकी एक्सेंट है या मुझे नहीं पता, मगर उनका एक डिस्टिंक्ट एक्सेंट है. ही विल नीड टू ड्रॉप इट एंड ही विल हैव टू वर्क ऑन चेंजिंग हिज अपीयरेंस एज वेल. लेकिन उनका हेयर स्टाइल एक है, क्लीन शेव है बिल्कुल. It's been the same in all 4 dramas. So he's a good actor. He has a lot of He's potential. got a lot of potential. Lot of potential. But he needs has to to work on his range. For sure. तो ये उनके लिए तो The girl is doing a good job. Which girl? Playing his wife. The girl is doing it. I don't know who she is. Unfortunately, I tried to find out her name next week तक हमें चला पता करा देते Their हैं. relationship was But cute. उन्होंने अच्छी उनका पूरा dynamic cute था. जहाँ तक जावियार की बात है, जुनैद and Kidza, इशाल. मुझे ऐसा लगता है ईशल. Am I too old for this kind of romance now? It annoys me. एक तो मुझे लग रहा है जैसे ये दोनों एक्टर्स जो हैं, ये it's like you're watching 2 underage people romance each other. नहीं यार, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल. दोनों पप्पू प्यारे लगते हैं बिल्कुल. It's like 2 underage people romancing each other. मिस मार्वल में आपको वो जो ब्रूनो है और जो इसकी जो आपस में उनकी क्यूट सी लवी डवी से सीन्स है, BFFs यार, क्या हो गया है? क्या उनकी एक मोमेंट थी एपिसोड 2 में, वो आपकी ज़हन में थी सिर्फ, और they were about to kiss. What are you saying? That was episode 1, by the way. It was episode 1 when they're sitting on the roof. Yeah. So you remember? No, but the thing is कि Kamala is, like somebody rightly said on Twitter, picking up boys like Thanos picks up stones. हर एपिसोड में उसको एक नई चीज मिल जाती है. There's Kamran, there's Bruno. Now there's Kareem. I've not seen this in the episode 4. So she's picking up boys in every episode. हाँ, तो but that's what a high school kid would do. But these kids are not shown to be in high school. They're university guys. That's what I'm saying. They seem to be. You're talking about the actors. I'm talking about the characters and the acting. For me, when I look at them, they look at underage kids romancing. I'm not saying they're underage. बहुत ही भोला पप्पू प्यार यार आजकल कौन करता है? मुझे तो नहीं, मुझे ये प्यार मैं नहीं रिलेट कर सकती. नहीं, अच्छा, explain this now. आप वर्ड मैं genuinely पूछ रहा हूँ. आप इन किरदारों को किस तरह से इग्नोर करो तो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करेगा. ये होता है आजकल. Are kids not smarter than this today? What are you saying? I'm saying. You're saying कि इनकी जो internal dynamic है वो ज्यादा dynamic होनी चाहिए थी. नहीं, I'm not saying that there's anything they're actually underage. I'm just saying कि ऐसा प्यार मुझे तो नहीं, मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही इनकी लव स्टोरी से. I am connecting with रुखसाना and अम्मा. एक सवाल का जवाब आप मुझे दें. आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप पूछिए. आप, मेरा आपसे एक सवाल है. अम्मा जो हैं, वो अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती? खावर के पास? हाँ. अच्छा सवाल है, क्योंकि ये अम्मा का अपना घर है ना. कुछ नहीं, खावर इतना जो एफ्लुएंट है और खावर इतना अमीर है, तो वो लाता रहता है सामान, उनको देता रहता है. ये एक अबाई घर एक होता है ना, हर एक वालदा का. ठीक है, अबाई घर है उनका, वो नहीं मूव आउट करना चाहती उससे. ठीक है, कहती है घर मैंने इधर ही. ये हो सकता है. हाँ, होता ना, आप एक दफा दिखा देते, कहते हुए कि अम्मा आप चलें अब आप, हाँ, या वैसे घूम के आ जाए वहाँ पे, 1-2 रातें रह के आ जाए. बिल्कुल वहम ना होता कि उन्हें बोले मुझे वहम है. हो सकता है आगे चल के ये हो. बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा यार, मजे का ड्रामा है. उसके बीच में जो हुक्स जो क्रिएट हुई हुई है वो बड़े मजे की हैं. मिस्ट्री का जो एलिमेंट है, इंट्रीग का एलिमेंट है. फोन पे किससे बात कर रही थी, लेटर्स किसके थे, इनकी खावर की. हसन, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद कैरेक्टर्स. वी हैव इमीडिएटली कनेक्टेड टू रुखसाना. हां, सो वेल डन टीम महम. हां, वी आर वेरी हैप्पी. बिल्कुल. मूविंग ऑन टू कैसी तेरी खुद. हां जी. इज महक डेड और नॉट? ये हमारा टाइटल तो यही होगा, इज महक डेड. How will Mehak be brought back? ये होगा टाइटल. कुछ ऐसा. Are you sure? Mehak can't be dead. Mehak is not dead. सवाल ही पैदा होता. चलें जी, let's आज
discuss the ways in which Mehak will come back. पहले तो ये है कि महक जो है So we are certain 100% that Mehak is not dead. नहीं, महक can't be dead. 7वीं एपिसोड में हीरोइन थोड़ी मरेगी. अच्छा. आप पहले ये बताएं कि महक जो है प्लास्टिक सर्जरी होके कोई और बनती नहीं, है? पहली तो बात ये है कि महक कोई होश आ जाए और वो उधर का दरवाजा खोल के, बिकॉज शेरू इस तरफ बैठा होता है, हाँ. उधर खोल के रेंगती रेंगती झाड़ियों में शेरू चली कौन जाए. है? जो अदान शाह टीपू का कैरेक्टर है, हाँ, अच्छा. जो इसको हिटमैन जिसको भेजा हाँ. होता है, जो केरोसिन डाल के इधर बैठा क्या होता है मतलब? he's waiting, he's for the explosion, he waits there to हाँ. see the car. हाँ, कि There's side. no way Mehak is surviving that ठीक है. unless कोई So? ghost rider होगा ना, कुछ तो होगा फिर. अच्छा. कैसी तेरी खुदगर्जी है, कुछ तो होगा. ओके. तो या तो ये कि उसको होश आया है और वो लंगड़ा के निकलते हाफ बर्न्ड मेहर निकल जाए उस तरह. अच्छा, हाफ बर्न. हाफ बर्न तो होना जरूरी है. ठीक है. दूसरा ये है खूबसूरती कि जो हम बात कर रहे थे वो कि तो वो खत्म हो जाएगी फिर. हाँ. अच्छा. हाँ. दूसरी चीज ये है कि आपके पास स्नो वाइट मोमेंट हो. स्नो वाइट नहीं, वो कौन सी थी जिसको कहा था कि जिसकी इवल स्टेप मदर थी? सिंड्रेला. नहीं, वो तो सबकी थी वैसे. सिंड्रेला की तो नहीं, वो जो विकेड विच जिसको कहती है कि इसको जंगल में ले जाओ एंड किल हर एंड ब्रिंग हर हार्ट बैक. मुझे नहीं याद. आई थिंक स्नो वाइट थी. स्नो वाइट को ले जाओ बिकॉज वो कहती है ना शी इज फेयर देन आई एम, टेक हर. तो या तो ये कि शेरू इसको बचा लेता है, मगर शेरू मेरा नहीं कौन ख्याल. है? शेरू वो हिटमैन. जो मारने आया वही बचा लेता है. हाँ, वो अबे तरस आ यार जा- ये उसको तरस आ आदमी जाता ये है. नहीं, ये प्लॉजिबल ये बात नहीं है. तो बस यही है कि वो किस तरह निकल जाती है वहां से. तो एक ही आपने बताया. आपने कहा लेट्स डिस्कस ways that she's been brought back. She has to be brought back, right? Is there a lot to discuss pre this scene? Yeah, man. I mean, I hats off to Sharood Alvi's acting. जब वो पहुंचते हैं क्या उस पे बारात पे वारदात पे जाए वकूआ पे. जाए whatever. His performance when he break downs और जिस तरह तरीके से वो अपनी बेटी को आवाज देते हैं, it really hit the heart. Even before that scene वो हाथ जोड़ के जब हाथ खड़े जोड़ के होते जो हैं माफी मांगते वो हैं कि मुझे देखें, मुझे शहूद अलवी साहब की परफॉर्मेंस पे कोई दो राय नहीं है. हाँ. उन्होंने बहुत जबरदस्त बहुत परफॉर्म अच्छा किया scene था. है. एंड आई थिंक कि शायद उनकी जगह अगर कोई और ये वालिद का रोल कर रहा होता तो शायद इतना अच्छा शायद ना कर पाता. जी. लेकिन मुझे उस किरदार से इख्तलाफ है. इतना स्माइललेस बाप आपने दिखाया हुआ है, इतना अब भी तो वो गिरबान पकड़ ही रहा ना, तुमने मेरी बेटी को मार दिया. अब तो चला गया ना, अब लॉस तो- हो गया. अब तो वो भी तो लॉस ही था ना. नहीं, बट अभी that was for something. अब तो नहीं, जब बट फॉर अ फादर टू से कि मुझे पता है कि तुम पूरी जिंदगी ना खुश रहोगी इस लड़के के साथ, कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, वो विलिंगली आप मार ही नहीं ना अपनी बेटी को. फर्क ये है कि उस वक्त आप अपने हाथों से मार रहे थे, अब किसी और ने मार दिया. अच्छा, जहाँ तक शमशेर की बात है, वहाँ पे आपको मुझे तो उससे मतलब वाकई कोई मेंटली डिसबैलेंस वाइब्स आई कि जितना वो डिलूजनल है, वो जितना सोच रहा है कि यार तुम छेड़ रही हो ना मुझे, तुम अच्छा मैं आज छेड़ूंगा नहीं तुम. आई मीन डू यू नॉट गेट इट? ही डजंट, राइट? सो नहीं, बट वो ये दिखाया नहीं गया. यू डोंट थिंक ही इज अनहिंज्ड? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि उस कैरेक्टर में जब शमशेर अपने एलिमेंट में होता है और बदतमीजियां कर रहा है और एग्रेशन कर रहा है, तो Danish has performed it very well, which is probably why he takes on these roles over and over again. But when he gets to the scene where he sees her, like the car on fire, and he's trying to show a breakdown or a complete, मुझे लगा कि performance गई, फिर झाग की तरह बैठ गई थी वहाँ पे. वो जो एक था ना पैशन, नहीं, वो पैशन वो देखें, मैंने जिस जाविये से उसको देखा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा. अभी वो शॉक में चला गया. वो उसका शॉक है कि यार कि ये हो कैसे गया. तो मुझे ऐसा लगा कि इसने शमशेर ने अभी रिएक्ट किए ही नहीं है. ये शॉक, ही इज इन शॉक. बाप जो है ना, बाप जरा शॉक से निकल के उसने रिएक्ट किया, गिरबान पकड़ा. नहीं, देखिए हर बंदा जो है वो ट्रॉमे को डिफरेंट करता है ना. तो शमशेर का मुझे ऐसा लगा कि वो शॉक में है. मुझे तो वो शॉक में नहीं लगा. I felt it was a little the performance was lacking when the shift came in the character, in the personality. जब वो बाप को देख रहा होता है, बाप गिरबान पकड़ा होता है. Obviously he's guilty कि what's happened and he's responsible for it partly and whatever. How believable is it for Shamsher to not doubt his own father? The first person you should doubt is the father. But it seems like he's thought he'll come around to it. वो चीजें एकदम नहीं स्ट्राइक करती, वो he'll come around to it. He sees Sheru outside the house. हाँ, अगर ये ना हुआ होता तो मैं कहता चलो. अच्छा, लेकिन आप ये बताएं, how stupid is it of Mehak's parents, महक, कि उसको दुल्हन बनने वो अकेला भेज देते हैं. अच्छा, बार बार ये महक के बाप को क्यों कह रहा है? ड्राइवर तुम्हारा अपना, गाड़ी तुमने भेजी है, गार्ड्स तुम्हारे, तुम उनसे पूछो कि किधर है अभी महक.
और वो जो खयाबान रॉबरी है जहाँ पे दुनिया भर की डकैतियाँ होती हैं, खाली सड़क, वहाँ से वो आ रही है, तो छोड़ना ही था वहाँ पे, दिखाया अच्छा था, it was a good. हाँ, I have to The say, enactment was very good. very good. The accident scene was very good. The whole fire and the flames and the way he बहुत lights अच्छा fire, था। वो बहुत हमें अच्छा। हमें हमेशा Adnan बड़ी Shah Tipu, fantastic performance, and the driver was so well performed. जिस तरीके से वो परेशान नहीं, होता है, पीछे इवन गाड़ी दुर्रे आ का रही जब है। वो गाड़ी यूं हुई है, वो जैसे हाँ, भी किया उन्होंने, हाँ। और फिर गाड़ी को उन्होंने दिखाया प्रॉपर एक्सीडेंट हुआ हुआ, डेंट पड़े हुए हैं Yes. दरवाजों के ऊपर, और Yes. फिर आग, चलो गाड़ी को नहीं भी लगाई, आपने दिखाई इस तरह से कि आपको लगा ऐसे लगा कि कि गाड़ी है। वो बहुत और अच्छी वो चीज़ गाड़ी है। का जो हुई है मूवमेंट, जो पूरी, अहमद भट्टी डायरेक्टेड इट वेरी वेल डन, गुड very well जॉब, वेरी directed गुड scene. जॉब, वेरी गुड जॉब। So now this is Radhen Shah, हाँ। somebody who writes very poignant and conscious, like intellectually conscious dramas. कोई ना कोई स्टोरी तो अब निकलेगी इसमें से, मुझे उम्मीद नहीं, है। हमने देखा कि उसका टर्न, वो हीरो बनने जा रहा है अब, जो विलन था हमारा, हाँ। जो कि हम कह रहे थे कि हीरो नहीं है, वो अब जिस तरह से एक अपसल करेगा, एक उसमें तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। ऑब्वियसली वो तो नेबर तो हीरो नहीं है, कजन जो है। नहीं, वो तो नहीं। हाँ। तो अब ये इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। आई मीन इट्स टू सून टू कमेंट। आई थिंक ये अगली एक दो किस्तों में अब क्लियर होगा कि ये कहानी गई किधर है। But a word of critique for Danish Taimur. He needs to change his style. He needs to change his Appearance style. or acting? His appearance. He needs to change his appearance because ये जो Johnny Bravo बाल हैं, ये बहुत 10 साल पहले खत्म हो गए हैं बिल्कुल भी. This is not how people, and this is especially not how rich people dress anymore. This is not how they style their hair. The makeup is too much. There's too much foundation. It doesn't add to his character. I mean, he's a good-looking guy. He knows how to act. So you maybe tone it down a little bit. And he's all got of a it. good personality and aura on screen. हमने इश्क़ में बात की थी। मैंने उनकी रॉन्ग नंबर देखी थी. It was not impressive at all. मुझे नहीं अच्छी लगी थी. इश्क़ में भी वही बात है ना, वो बार-बार एक जैसे रोल करते हैं. नहीं, मैं अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ. He looked very good in इश्क़, और भी बालों का भी हमने इतराज किया था कि वो बाल वो भी नहीं अच्छे कौन लगे थे. मुझे कर्ली बाल थे उनके. हमने इतराज किया जी हमने किया था, हमें वो भी नहीं अच्छे लगे थे. तो फिर वो किया एफर्ट, पिछली बार एफर्ट की तो आपको तो पसंद वो भी नहीं, तो फिर ये भी नहीं. So obviously he needs a better stylist. ठीक है. To style his hair, this hair and makeup is not good. ठीक. So दुरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Dure was very good. वो एक सीन था, वो मिस्कीन सी बन के जब एंटर होती है महक पार्लर में, सैलून में, वो पहचानती नहीं है सैलून वाली, फिर पहचान जाती है. उसकी कोई रेलेवेंस थी? मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उस स्टेज से ज्यादा. वो कहती है ना कॉन्वर्सेशन, वो मुझे बड़ी पॉइंटलेस ही लगी कि वो इतना बड़ा उसका जो भी हो रहा है, इशू हो रहा है, और वो उसको कहती है, पार्लर वाली, सैलून वाली को एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो गया. लाइक what the hell, random. Not relevant. But yeah, but I'm interested now. I'm intrigued कि ये वाकई मर गई है. अगर नहीं मरी तो आपने कहा कि let's find out. मैं तो नहीं मर सकती नहीं. टाइटल क्या होगा? Is Mehak dead? Are we to believe that Mehak is dead? Are we to believe that? Yeah. How will Mehak be brought back? How are they going to bring her back? Yeah. ये करना है. Are we to believe that Mehak is dead? Are we to believe Mehak is dead? I mean, Mehak's not dead. So, but I would really want to know how they're going to bring her back. ठीक है. How will Mehak be brought back? हाँ. और यार अब्बा जी जो हैं खानदानी नवाब जो हैं, वो कहते हैं उसको फरवा को कि तुम जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि निकाह हो जाए. मैं भी उसका वो पता ना उनको कि सेम. No, but then she should know that he's behind this entire thing. She knows. She knows exactly. He'll also find out. तो ठीक है, मजा क्या है. Dara will find out. Yeah. ठीक है. Interesting. अब अग्रेशन खत्म हो जाए तो ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग. ठीक है. बोर नहीं आप होते. अब देखते हैं. आपको लगता है कि शमशेर रिडीम हो सकता है? अब हो सकता है. क्यों? It depends on what he does now. बिल्कुल शादी तो नहीं हुई ना. निकाह तो नहीं हुआ. It's not like he's done something irreversible. But is he not responsible for her death if she's dead? Of course. तो रिडीम कैसे होगा? अब वो एक बंदी तो मार दी उसने. अगर वो मरी है, वो नहीं मरी. हाँ. वो नहीं मरी. ठीक है. जी. तो let's see. जी. Let's see क्या होता है. Let's see क्या होता है. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, शहूद अलवी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. दानिश की परफॉर्मेंस एग्रेशन में बहुत अच्छी थी. गम में, शौक में मुझे नहीं लगा he delivered. I feel he needs to change his style, hair and makeup, absolutely. And other than that, I feel that this was a big bang that we were waiting for. You got it in the 8th episode. Yeah. And you get out of the stalker toxic behavior, and it's a story that I want to watch. ठीक हो गया. And we're certain that Mehak is not that dead. We're only concerned, or we're curious how Mehak is going to be brought back. If she comes back as a burn victim, I'm going to be really impressed. ठीक है. हाँ. And then him still in love with her. And then let's see what happens.
ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू, आप लोग हमेशा ट्यून इन करते हैं, इतना प्यार भेजते हैं, इतना फीडबैक भेजते हैं, इतना कंसर्न शो करते हैं। वी लव यू ऑल। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मुझे पता चला है कि हमारी लफंगे वाली वीडियो जो है वो कल नहीं आई होगी। सो अगर इंट्रो नहीं सुना आपने, अब मैं बता तो देता हूँ, कल लफंगे वाली वीडियो हमारी नहीं आई। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसको सैटरडे को चला दें, बट मुझे उम्मीद है कि कल आपने आमना का इंटरव्यू जरूर देख लिया वो भी शायद ना देखा हो, तो मैं भी रिवील नहीं करूंगा कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। हो सकता है आपने कुछ देखा हो सकता है ना देखा हो, हाँ। क्योंकि हम ये थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाय द टाइम ये वीडियो आएगी मैं अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा कि जो वीडियो लफंगे वाली है वो कब आएगी, और मैं आमना से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंटरव्यू उनका है वो भी वो अनाउंस कर दें, वो आपको कब देखने को मिलेगा। जी आपको, मुझे नहीं पता आपको कब देखने को मिलेगा, बट इट्स एन इंटरव्यू विद शुएब मलिक। He's in Thailand right now, shooting or filming for this program called Ultimate Muqabla. तो वहाँ पे उनके साथ थोड़ी गपशप हुई है over Zoom. Interesting interview. मजे की बातें उन्होंने बताई हैं. It's a brief one. मुझे नहीं पता हम रिलीज कर सके कि नहीं, लेकिन इस वीकेंड पे आने वाले 2 दिनों में अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, I have a new channel called His, और वहाँ पे फैशन फोर्टनाइटली की हसन एक और एपिसोड आपको जरूर मिलेगी। दिन डिटरमिन कर लिया आपने? जी, दिन डिटरमिन कर लिया किस दिन? नहीं, ओवर द वीकेंड होगा। ओवर द वीकेंड यू विल गेट द एपिसोड, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, हिस को सब्सक्राइब करें, समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें, ये द हॉट नेटवर्क का सारे पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब चैनल्स हैं, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हिस और समथिंग हॉट की आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा, बारिशों में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।